اہل لاہور کے لیے ترقیاتی کاموں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ مسلم لیگ نواز کے سابق ممبران صوبائی اسمبلی کو نواز دیا گیا۔ کئی سابق ممبران اسمبلی کے حصے میں اربوں، متعدد کو کروڑوں روپے دینا منظور۔ ترقیاتی کاموں میں 10 ارب 45 کروڑ 50 لاکھ کے فنڈز لگائے جائیں گے۔ صوبائی دارالحکومت کی 279 اسکیموں کی تکمیل کی اجازت اسمبلی، الیکشن کمیشن اور فائنانس کابینہ کمیٹی کو بھجوا دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، معروف لاہور کے لیے ترقیاتی کاموں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے سابق ممبران صوبائی اسمبلی کو نواز دیا گیا ہے۔ کئی سابق ممبران کے حصے میں اربوں اور متعدد کو کروڑوں روپے دینا منظور کر لیے گئے ہیں۔ سڑکوں، گلیوں، سیوریج کی مرمت و بحالی اور تزئین و آرائش کے کام کیے جائیں گے۔ ترقیاتی کاموں میں 10 ارب 45 کروڑ 50 لاکھ کے فنڈز لگائے جائیں گے۔ اس والے سے صوبائی دارالحکومت کی 279 اسکیموں کی تکمیل کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے منظوری کے لیے یہ اجازت نامہ اسمبلی، الیکشن کمیشن اور فائنانس کابینہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے، جس میں ترقیاتی کاموں کی منظوری الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ پی پی 146 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی 33 اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے، جس میں حمزہ شہباز شریف کو ترقیاتی کاموں کی مد میں 70 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں، جس میں پی پی 169 میں اختر بادشاہ حلقہ مریم نواز کے لیے 10 اسکیموں کی مد میں 2 ارب روپے کی خطی رقم منظور کر لی گئی ہے۔ پی پی 144 میں سمیلہ چودھری کو 20 کروڑ کی مد میں 4 ترقیاتی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں۔ اسی طرح پی پی 145 میں غزالی سلیم بٹ کو 10 کروڑ کی 2 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پی پی 147 میں مشتبہ شجاع الرحمان کو 37 اسکیموں کے لیے 86 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ پی پی 148 میں چودھری شہباز کو 20 کروڑ کی 12 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے۔ پی پی 149 میں میاں مرغوب احمد کی 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 20 کروڑ کی منظوری، جبکہ پی پی 150 میں بلال یاسین کو 29 اسکیموں کے لیے 1 ارب 36 کروڑ 7 لاکھ کی خطی رقم کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح پی پی 151 میں باقر حسین کو 20 کروڑ کی 4 ترقیاتی اسکیمیں، پی پی 152 میں رانا مشہور کو 2 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح پی پی 153 میں خواجہ عمران نذیر کو 1 ارب 1 کروڑ کی 24 اسکیموں کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح پی پی 154 میں چودھری اختر کو 20 کروڑ کی 8 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پی پی مسلم لیگ نون کے سابق ممبران صوبائی اسمبلی کو نواز دیا گیا ہے۔ عمران، تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ کئی برس گزر گئے، کشمیر روڈ اپنی تکمیل کی منتظر۔ فائل دفاتر میں شٹل کاک بن کر رہ گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ گزرنے والی سڑک اداروں کی جنگ کا شکار۔ روڈ کی تعمیر کے حوالے سے اداروں کی ناقص کارکردگی کی دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا ہے۔ جون 2021 میں سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ روپے ایم سی ایل کو جمع کروائے گئے ہیں۔ کئی برس گزر گئے، کشمیر روڈ اپنی تکمیل کی منتظر ہے۔ فائل دفاتر میں شٹل کاک بن کر رہ گئی ہے، جبکہ گورنر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ گزرنے والی سڑک اداروں کی جنگ کا شکار ہے۔ روڈ کی تعمیر کے حوالے سے اداروں کی ناقص کارکردگی کی دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا ہے۔ جون 2021 میں سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ روپے ایم سی ایل کو جمع کروائے گئے۔ تو کئی برس گزرنے کے باوجود کشمیر روڈ اپنی تکمیل کی منتظر ہے۔ فائل دفاتر میں شٹل کاک بن کر رہ گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ گزرنے والی سڑک اداروں کی جنگ کا شکار ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے تفصیلات سے۔ کئی برس گزر گئے، لیکن انتہائی اہمیت کی حامل کشمیر روڈ اپنی تکمیل کی منتظر ہے۔ گورنر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ گزرنے والی یہ سڑک اداروں کی جنگ کا شکار ہو چکی ہے۔ بار بار چیک بھی جاری ہوتے رہے، مگر سڑک کی تعمیر کا کام التوا کا شکار ہے۔ روڈ کی تعمیر کے حوالے سے اداروں کی ناقص کارکردگی کی دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا ہے۔ جون 2021 سے ستمبر 2023 تک کشمیر روڈ بحالی کی فائل دفاتر میں شٹل کاک بن کر گھومتی رہی۔ واسا اور ایم سی ایل کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہونے کی وجہ سے کشمیر روڈ کی مرمت کا کام نہ ہو سکا۔ واسا کی جانب سے 24 جون 2021 کو کشمیر روڈ کی مرمت سے متعلق پہلا لیٹر لکھا گیا۔ جون 2021 میں ہی سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ روپے ایم سی ایل کو جمع کروا دیے گئے۔ واسا کی جانب سے جاری کردہ پہلے فنڈز پر ایم سی ایل نے سڑک نہ بنائی۔ پہلا چیک جاری ہونے کے بعد سڑک کی مرمت سے متعلق 1.5 سال تک خاموشی رہی۔ 1.5 سال بعد کشمیر روڈ کی بحالی کے لیے
17 जनवरी 2023 को दोबारा पैसे दिए गए। बर वक्त सड़क की तमीर और मुरम्मत ना होने के बायस लागत में इजाफा हुआ तो जनवरी 2023 में वासा ने MCL को मजीद 43 लाख रुपए जमा करवा दिए, जिसके बाद वासा ने 29 मार्च 2023 को चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर MCL को मरासला लिखा और इस मरासले में भी कश्मीर रोड की तमीर मुकम्मल करने की इस्तदा की गई, लेकिन मर्ज बढ़ता गया और जूं जूं दवा की जो सड़क है उसकी तामीराती काम फिर भी अधूरा रहा। वासा ने आखिरी लेटर 8 अप्रैल 2023 को MCL को दोबारा भेजा, जिसमें सड़क की तमीर की इस्तदा की गई, लेकिन बार बार मरासलों के बावजूद कश्मीर रोड की ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आपने तफसीलें नगाह किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान तमाम सर्कल में 205 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में एक ज़रई, 6 कमर्शियल और 198 घरेलू थे। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर लेस्को रीजन में आज छठे रोज भी जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लेस्को में आज छठे रोज के ऑपरेशन के दौरान तमाम सर्कल्स में कुल 205 कनेक्शन जो है वो बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी गई हैं, जिनमें से 105 मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। लेस्को तर्जमान के मुताबिक एक मुलजिम को जो है वो मौका से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में एक ज़रई, 6 कमर्शियल और 198 घरेलू कनेक्शन जो है वो शामिल थे। आज 6 रोज के दौरान लेस्को की जानिब से कुल 1498 कनेक्शन जो है वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। 1497 कनेक्शन के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज करने की दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, जिनमें से 947 दरख्वास्तें जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, FIR दर्ज हो चुकी हैं और कुल 86 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस दौरान जो है वो लेस्को की जानिब से 20 करोड़ 17,51,051 हज़ार रुपए जो है वो डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। जी, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। फहद, ये भी अपडेट कीजिए कि इसके बाद क्या पेशरफ्त सामने आएगी। जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ सर्कल में ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे। वफाकी हुकूमत की सख्त हिदायत हैं और इस हवाले से वजारत पावर डिवीजन की जानिब से भी तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो है उन्हें सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम बिजली चोरों को जो है वो पकड़े और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज कराएं। और इसके साथ साथ जो स्पेशल इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। तफसीलात बता रहे थे फ़हद अमीन, बहुत शुक्रिया। FIA की हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आ गई है। 10 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। बरामद होने वाली रकम में 6 करोड़ 81 लाख पाकिस्तानी और 1.5 करोड़ से जायद की गैर मुल्की करेंसी शामिल है। डायरेक्टर FIA सरफराज बेग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मजीद बताया कि अंदरून लाहौर से 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान मजहर, शफकत, जीशान सलमान से डॉलर्स, यूरोस, दरहम, रियाल और पाउंड्स मिले हैं। मुलजिमान पहले ओमेगा मिनी एक्सचेंज के नाम से कारोबार करते थे। तफसीलात के लिए बात करेंगे राहील से। जी राहील, अपडेट कीजिए। जी, FIA लाहौर जो ने बड़ी कार्रवाई की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई है कि हवाले हुंडी के कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया, जिस पर एक बड़ा गैंग जो है वो गिरफ्तार किया, जिनसे तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की मुल्की व गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद कर लिए। 3 मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार किए, जिसमें शफकत, जीशान और सुल्तान शामिल हैं। शफकत के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो मरकजी मुलजिम है उसका जो है वो अगर उसका जो है वो भाई है जिसको गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान पहले ओमेगा मनी एक्सचेंज के नाम से कारोबार कर रहे थे, ताहम कंपनी का लाइसेंस मनसूख होने के बाद जारी तौर पर जो है वो हवाला हुंडी का कारोबार किया जा रहा था। और खसूसी टीम जो है वो डायरेक्टर FIA और सरफराज बेग ने तश्कील दी थी, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर मुबशिर तरमिज़ी और असिस्टेंट डायरेक्टर अदील अब्बास और दीगर जो लोग हैं वो शामिल थे। मुलजिमान ने जो टीम थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील अली, आपने आगाह किया। इस पर जितने लोग भी मुलव्वस हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर, या मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा जो लोग पाकिस्तानी ख़ास तौर पर और इस हवाला हुंडी के काम में बाहर बैठे हुए हैं,
हम उनको भी उनके खिलाफ रेड नोटिस के ज़रिए उनको वापस लाएंगे। इन सारे काम को हमने रोकना है और इस सारे काम से पाकिस्तान को छुटकारा दिलाना है इंशाल्लाह। तमाम इदारे हम इसमें हमें बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी सपोर्ट हासिल है और हम ये काम कर रहे हैं। इस पर भी हमारी टीम्स बैठी हुई हैं कि कोई लीगल जो इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें शायद लेजिस्लेशन के हवाले से, कोई सज़ाओं के हवाले से हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, वो भी हम तजावीज़ गवर्नमेंट को दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी टारगेट ये है कि हम हवाला हुंडी का कोई बंदा जो इसमें मुलव्वस है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हमने 84 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है, 41 मुकदमात दर्ज किए हैं और 560 मिलियन 56 करोड़ रुपए की करेंसी जो हमने बरामद की है। डॉलर के हवाले से बात करें तो बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर की कदर में ₹1.36 की कमी सामने आई है। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये 80 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज करेंसी मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और खास तौर पर इसमें सबसे मुस्बत चीज़ ये है कि आज इंटरबैंक डॉलर रेट और ओपन मार्केट दोनों डॉलर रेट 300 रुपये से नीचे आ चुके हैं, जो कि चंद हफ्ते बाद ये सूरत देखी जा रही है। इस वक्त तकरीबन ₹1.36 इंटरबैंक डॉलर रेट की कदर में कमी देखी गई है, जिससे इंटरबैंक डॉलर रेट ₹299.80 पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट इंटरबैंक डॉलर रेट से भी कम है, जो कि इससे भी ज्यादा मुस्तक ख्याल किया जा रहा है कि इस वक्त ₹298 तक डॉलर दस्तियाब है और इस वक्त हुकाम की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है। उसके नतीजे में इस वक्त डॉलर की जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ या जिन्होंने डॉलर स्टॉक किया हुआ था उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि डॉलर जल्द अज जल्द मार्केट में फरोख्त किया जाए, क्योंकि इससे मज़ीद सस्ता होने का इम्कान मौजूद है और जो सरमायाकार है उनकी कोशिश है कि जो डॉलर उन्होंने होल्ड किया हुआ है उसे मार्केट में लेके आए, जिसकी वजह से ऊपर डॉलर के मजीद सस्ता होने का इम्कान है। जाहिद तफसीलात आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई से गरीब आवाम परेशान। प्याज 120, लहसुन 600, अदरक 1200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। केला दर्जावल 180, दर्जा 2 में 140 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तियाब है। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और ब्रायलर के हवाले से बात की जाए, पोल्ट्री मसनूआत के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें मजमूई तौर पर 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। लेकिन जिन सब्जियों के हवाले से, प्याज टमाटर के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त प्याज 83 रुपये मुकर्रर किया गया, टमाटर 110 रुपये सरकारी रेट इसमें, लहसुन 460 रुपये, अदरक 1020 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। सब्ज़ मिर्च आज 10 रुपये महंगी करके 120 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो मेथी है वो 10 रुपये इजाफे के बाद 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे कि सब्जियां मंडी में सस्ती हैं कहीं या महंगाई हर जगह है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। किराए का मकान है हमारा, ठीक है, बिल इतने ज़्यादा आए हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा 13-14 हज़ार रुपये बिल आया हुआ है। किराए का मकान है, हम किराया जमा कराएं, कमाते 700-800 रुपये कमाते हैं। फल खरीदा ही नहीं है, बच्चे कहते हैं फल लेके आओ पापा, फल लेके आओ, फल लेके आओ, बस गुजारा नहीं, गुंजाइश नहीं है हमारी। आज बिल्कुल आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो दिन ब दिन महंगाई की वजह से बुरी तरह मुतासर हो रही है। जो फल है वो तो एक जो गरीब या यौमिया उजरत पे काम करने वाला मजदूर जो है वो तो नहीं खरीद सकता, लेकिन सब्जियां जो है अब उनकी कीमत भी जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की कीमत में मामूली कमी सामने आई है। चीनी की एक हफ्ते में कीमत 16 रुपये कम हुई है। शुगर मिल्स का रेट 15,400 से 16,200 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम है। मार्केट में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए। जी, चीनी की कीमतों में इंतहाई तेज़ी का रुझान अब कुछ रुका हुआ नज़र आ रहा है और मुस्बत चीज़ ये है कि मार्केट में एक मुस्बत ट्रेंड के साथ इस वक्त चीनी के सौदे हो रहे हैं और एक गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर मौजूद है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी की कीमत कम होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि परचून की कीमत अभी तक 175 रुपये फ़ी किलो तक है, जो कि ज़्यादा ख्याल की जा रही है, लेकिन शुगर मिल्स की जानब से जो गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही थी वो अब रुक चुकी है और उसको रिवर्स गियर लगता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त पंजाब की शुगर मिल्स हैं वो तकरीबन 154 रुपये फ़ी किलो से लेकर 164 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फराहम कर रही हैं, यानी 15,400 से 16,400 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम चीनी इस वक्त
शुगर मिल्स की जानब से फ्राहम की जा रही है, जो कि एक हफ्ता कबल तकरीबन 18,000 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम हो चुकी थी और मुस्तकबिल के सौदे इससे भी महंगे हो रहे थे, जिससे खदशा मौजूद था कि चीनी के नर्ख 200 रुपये फ़ी किलो की हद को भी अबूर कर जाएंगे। लेकिन इसके बाद जब हुकूमती इदारों की जानब से चीनी के स्मगलर्स और चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो इस वक्त मार्केट में पैनिक सेलिंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से जिसके पास भी चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है वो उसे फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ये चीनी का नर्ख मामूल से ज़्यादा पर देखा जा रहा है, लेकिन जो गैर मामूली तेज़ी थी वो अब नहीं है और आने वाले दिनों में चीनी तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, परवेज़ इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की नैब को अपील के साथ मज़ीद दस्तावेज़ात लगाने की हिदायत की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस राहील कामरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। परवेज़ इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट की नैब को अपील के साथ मज़ीद दस्तावेज़ात लगाने की हिदायत भी की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस राहील कामरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बताया जा रहा है, परवेज़ इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव उमर सरफराज चीमा की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने जिना हाउस केस में उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत के लिए खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत को गैर मुअस्सर करार दे दिया। अस्करी टावर हमला केस में उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए मुलतवी हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव उमर सरफराज चीमा की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई है। अदालत ने जिना हाउस केस में उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत को गैर मुअस्सर करार दे दिया है, जबकि अस्करी टावर हमला केस में उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। और इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कल होगा। इम्तहानात में 1,60,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की है। तमाम तालीमी बोर्ड बैक वक्त नताइज का ऐलान करेंगे। सुबह 10 बजे नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, कल जो है इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना नताइज का ऐलान किया जाएगा। लाहौर बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ से 1,60,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की थी और कल नताइज का ऐलान होगा और तमाम तालीमी बोर्ड एक वक्त में ही नताइज का ऐलान करेंगे। सुबह 10 बजे जो नताइज हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस हवाले से जो कि पोजीशन होल्डर्स के एजाज में कोई तकरीब होगी कि नहीं होगी, इस हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ। मैट्रिक के नताइज आने के बाद अचानक से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फैसला किया गया था कि पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब मुनक्किद की जाएगी और तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मेवान ताम इंटर के हवाले से ताहाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और तालीमी बोर्ड कोई फैसला नहीं कर पाए। ताम नताइज जो हैं वो कल 10 ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आपने आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट में मनशियात के मुकदमा में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश। अदालत का मुलजिम एहसानुल्लाह के मुकदमा का चालान फौरी तौर पर जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने केस पर समाअत की। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में मनशियात के मुकदमे में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश हुए हैं। अदालत का मुलजिम एहसानुल्लाह के मुकदमे का चालान फौरी जमा करवाने का हुक्म जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने केस पर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट में मनशियात के मुकदमे में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश हुए। अदालत का मुलजिम एहसानुल्लाह के मुकदमे का चालान फौरी तौर पर जमा करवाने का हुक्म भी जारी किया गया। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने केस पर समाअत की तो लाहौर हाई कोर्ट में मनशियात के मुकदमा में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LTA सिटी हाउसिंग स्कीम में ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया का टीमों पर हमले का मामला।
LD انتظامیہ نے ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ مقدمہ زبیر مشتاق، نوید مشتاق، جنید مشتاق سمیت 120 نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ آج LDA سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں آپریشن کے دوران قبضہ مافیا کی جانب سے LDA کی ٹیموں پر دھاوا بولا گیا، تاہم LDA انتظامیہ نے بھی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے کمر کس لی ہے۔ LDA اور پولیس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے ساتھ ساتھ 7 دفعات پر مزید مشتمل جو FIR ہے وہ درج کی گئی ہے۔ FIR میں زبیر مشتاق، نوید مشتاق، جنید مشتاق کے خلاف نامزد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح عرفان آس محمد، فہیم بوٹا، نعیم بوٹا، عمران بوٹا سمیت دیگر 120 سے زائد افراد ہیں جن کو LDA سٹی حملہ کیس FIR میں نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس نے نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارنا شروع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین۔ ACRs پر جعلی دستخط اور اثاثوں کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ نے 9 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے۔ جی بالکل، آج ایک بڑا معاملہ سامنے آیا جس میں ACR پر جعلی دستخط اور اثاثوں کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا، جس پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ نے 9 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ رضوان نذیر کی ہدایت پر ملازمین کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پیڈا ایکٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ گریڈ 14 کے 8 ملازمین نے رپورٹنگ آفیسر کے جعلی دستخط کر کے ACR جمع کروائی، جبکہ سب انجینئر ڈسٹرکٹ کونسل ناروول محمد شاہد غنی، سب انجینئر میونسپل کمیٹی ناروول جاوید آصف، سب انجینئر ناروول آفتاب علی، جبکہ توقیر منیر سب انجینئر MC شکرگر، تسیم مجید سب انجینئر MC ناروول، اس کے ساتھ ساتھ شمس الدین سب انجینئر ڈسٹرکٹ کونسل ناروول، راشد رضا سب انجینئر میونسپل کمیٹی جراوالا، لیاقت حیات سب انجینئر MC میاں والی کو بھی جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان ریلوے کے مالی حالات بہتر نہ ہو سکے، خسارے کا شکار ریلوے اپنے ملازمین کو وقت پر تنخواہیں دینے سے بھی قاصر ہے۔ ریلوے کے بیشتر افسروں اور ملازمین کو ماہ اگست کی تنخواہ تاحال نہیں مل سکی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز فاہد امین سے۔ جی فاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، وزارت ریلوے کے متعدد دعووں کے باوجود پاکستان ریلوے کی مالی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی۔ ریلوے یونین اور ریلوے ملازمین کا احتجاج بھی جو ہے وہ کام نہیں آیا۔ خسارے کا شکار محکمہ ریلوے اپنے ملازمین کو بر وقت تنخواہیں دینے سے بھی قاصر ہے۔ ریلوے کے بیشتر افسران اور ملازمین کو ماہ اگست کی تنخواہ جو ہے وہ تاحال نہیں مل سکی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے افسران سے مختلف کیٹیگری کے ملازمین جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ ریلوے میں کیٹیگری 1 کو 1 تاریخ سے تنخواہیں ادا کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیٹیگری 2 کو 4 تاریخ اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاہد امین۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ملازمین کا لیو انکیشمنٹ کے قانون میں تبدیلی کے خلاف احتجاج، ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا دیے۔ ڈائریکٹوریٹ آف کالجز لاہور میں بھی ہڑتال جاری، سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ایجوکیشنل کمپلیکس میں کوئی سرکاری کام نہیں ہو رہا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ایجوکیشن کمپلیکس ہال روڈ پر جو ہے وہ ملازمین کی ہڑتال شروع ہو چکی ہے اور کام جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تمام ایجوکیشن کمپلیکس کے ملازمین، جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور ڈائریکٹوریٹ آف کالج اور اس کے ساتھ DPI آفس کے تمام سرکاری ملازمین نے جو ہے وہ دفاتر کو تالے لگا دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لیو انکیشمنٹ کے قانون میں جو تبدیلی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس قانون میں تبدیلی واپس لے، نہیں تو یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نہ صرف ایجوکیشن کمپلیکس بلکہ دیگر سرکاری محکموں کے ملازمین بھی جو ہے وہ ہڑتال پہ ہیں، اور اس وقت پریس کلب کے باہر جو ہے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور ملازمین کا کہنا ہے کہ لیو انکیشمنٹ کے قانون میں تبدیلی کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ عاطف۔ LWMC شہر میں اسموک پر قابو پانے کے لیے متحرک، 9 ٹاؤنز میں 43 ہاٹ سپاٹ ایریاز کی ڈیجیٹل اپلیکیشن پر میپنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ CEO بابر صاحب دین کی ہاٹ سپاٹ ایریاز پر روزانہ کی بنیاد پر صفائی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے۔
आज बिल्कुल शहर लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के हवाले से LWMC मुतहरिक है। COLWMC बाबर साहब की हदायत पर ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं, जबकि 9 टाउन में 43 हॉट स्पॉट एरियाज की डिजिटल एप्लीकेशन में मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है। सर्कुलर रोड, लारी अड्डा, भाटी चौक, रेलवे रोड, बाजार हॉट स्पॉट एरियाज में शामिल हैं, जबकि ठोकर चौक, कॉलेज रोड, कोटा पिंड स्टॉप, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड भी जो है वो हॉट स्पॉट में शामिल कर लिए गए हैं। हॉट स्पॉट एरियाज पर रोजाना की बुनियाद पर स्वीपिंग और वॉशिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। मुतलका एरिया का सुपरवाइजर रोजाना की बुनियाद पर वर्किंग की तस्वीर एप्लीकेशन पर अपलोड करने का पाबंद होगा। बाबर साहब का कहना है कि तमाम शाहराहों पर मरहलावार स्क्रैपिंग का अमल जारी है। रोजाना 70 से 80 किलोमीटर रोड पर स्क्रैपिंग का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। शुक्रिया इमरान अकबर। स्कूलों में पहले मरहले के इम्तहानात का आगाज़ 18 सितंबर से होगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहली से 8वीं जमात के तलबा के इम्तहानात होंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। आज जी पंजाब के 48,000 सरकारी स्कूलों के लिए जो फर्स्ट टर्म का इम्तहान है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है और इम्तहानात का आगाज़ जो है वो 18 सितंबर से होगा। इस हवाले से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और तमाम सरकारी स्कूलों के सरबराहान को खुसूसी हदायत भी की हैं और ये कहा गया है कि हर स्कूल अपनी डेट शीट अलग जारी करेगा और इस इम्तहानात के लिए आइटम बैंक तक रसाई जो है वो 14 सितंबर से दी जाएगी, जहां से सवालिया पर्चे जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। और साथ ये भी हिदायत की गई है कि 2 ज़बानों में ये सवालिया पर्चे तैयार किए जाएंगे। इंग्लिश और अंग्रेजी के अलावा तमाम पर्चे जो हैं वो 2 ज़बानों में तैयार किए जाएंगे और बच्चों को खुद ये स्कूल सरबराह की जानिब से फराहम किए जाएंगे। इम्तहानात का शेड्यूल जारी हो गया। आतिफ तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर की 43 जेलों में 55,000 से ज़ायद अफराद बंद हैं। जेलों में 1,000 से ज़ायद ख़वातीन मुख्तलिफ जराइम में बंद हैं। पंजाब की जेलों में 13,369 मर्द, 194 ख़वातीन सज़ा याफ्ता हैं। सज़ा याफ्ता मर्दों और ख़वातीन में कत्ल, अगवा, बराए और समेत दीगर संगीन जराइम शामिल हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब भर की 43 जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा जो कैदी हैं वो बंद हैं। 55,000 से अफराद जो हैं वो पंजाब की जेलों में बंद हैं। इन जेलों में 1,000 से ज़ायद ख़वातीन मुख्तलिफ जराइम में पाबंदी सलासल हैं। पंजाब भर की जेलों में 13,563 ऐसे अफराद हैं जिनको मुख्तलिफ जराइम में सजा हो चुकी है। 13,359 मर्द मुख्तलिफ जराइम में जो है वो कैद हैं, जबकि 194 जो खवातीन हैं वो सजा याफ्ता हैं, जिनमें कत्ल के तहत जो है वो खवातीन भी जेलों में बंद हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो कैदी बंद हैं। फैसलाबाद की जेल में 41 खवातीन जो है वो सजा काट रही हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में 34, मुल्तान में। जी, तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। खबर शामिल करें। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जंगली हयात सैयद रिजवान महबूब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इको सिस्टम की अपग्रेडेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। शजरकारी मुहिम का 3रा फेज़ शुरू करने के हवाले से टाइम फ्रेम पर भी मुशावरत हुई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए। चेयरमैन वज़ीर टास्क फोर्स बराए जंगली हयात और जंगलात के लिए जो है सैयद रिजवान महबूब की ज़ेर सदारत 11 सतह का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी जंगलात, माहौलियात, WWF, PNG, फिशरी, जंगली हयात और जंगलात के जो है अफसरान शरीक हुए। इस मौका पर जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और क्लाइमेट चेंज के माहिरीन ने भी इजलास में शिरकत करते हुए अपनी राय दी। इको सिस्टम की अपग्रेडेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इजलास में क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुमकिन इक़दाम पर भी तजावीज़ का जायजा लिया गया। चेयरमैन वज़ीर टास्क फोर्स का इस मौका पर कहना था कि हयातियाती तनों जो है इसके इस्तेहकाम के लिए जो है वो इक़दाम नामज़द हो चुके हैं और क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए 5 साला मनसूबाबंदी की जाएगी। और इजलास में इको सिस्टम की प्रोटेक्शन के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और फाल इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली। कुछ बात करें डेंगू के हवाले से तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डेंगू से मुतासरा यूसीज को मार्क करके तमाम सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत जारी की गई हैं। DHA फेज़ 135 UC हेलो की शादरा बेगम कोट में डेंगू ऑपरेशन करने का भी फैसला किया गया है। इमरान अकबर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इमरान अकबर, फैसले के हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल
زیادہ ڈینگی کا معاملہ ہے اور اس والے سے کمشنر لاہور متحرک ہیں. ڈپٹی کمشنر نے آج کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کی ہے. کمشنر لاہور نے زیادہ ڈینگی آپریشن کے لیے ڈینگی زیادہ یوسیز کو مارک کر تمام سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. اس وجہ سے پی ایچ اے پارکوں میں ہاف سلیو اور شارٹس والے وزٹر کے داخلے کو محدود کرے گا. جبکہ کمشنر لاہور کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہر ٹاؤن علی رضا آباد محلہ کریشیاں نبی پورہ گلبرگ 1 2 3 میں ڈیپ زیادہ ڈینگی آپریشن کا حکم دیا ہے. اس وجہ سے ڈی ایچ اے فیز 135 یو سی حلوں کی عمران تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ. شہر میں حبس کا راز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی آج شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کی پیش گوئی ہے. مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے. جی سامیہ، موسم کا احوال بتائیے. بالکل، اگر بات کی جائے موسم کے حوالے سے تو سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تاہم آسمان پر ہلکے بادل بھی موجود ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج شہر لاہور میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اچھی خاصی گرمی جو ہے باہر محسوس ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 15 ستمبر کے بعد شہر لاہور میں کچھ اچھی بارشیں برسیں گی، جس کے باعث یہی دیکھا جائے گا کہ حبس اور گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہونے کے باعث اچھی خاصی جو حبس ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. آسمان پر بادل ہونے کے باوجود بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باہر جو گرمی اور حبس کی کیفیت ہے وہ برقرار ہے. اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے آج درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے. تاہم شہر لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور حبس کی جو شدت ہے وہ بھی یہاں پر محسوس کی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو لاہور شہر فضائی آلودگی کی فہرست میں 12ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 133 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. جب تک شہر لاہور میں اچھی بارشیں نہیں برسیں گی، حبس اور گرمی کا جو راج ہے وہ اسی طریقے سے ہی برقرار. شکریہ سامیہ. جنگ ستمبر کے ہیرو میجر عزیز بھٹی کا 58واں یوم شہادت. میجر عزیز بھٹی نے برقی سیکٹر میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. شہید سلام